How are you? Well, this is the time to wind up the chapter that is statistics of class 10th. Before winding up, I think an aspect is pending. That is an empirical relationship between mean, median and mode. Well, it is a formula. Basically, it is a formula. If two of the terms like mean and median or median and mode or any of the two from the three is given, then we can find out the third value. Okay, and it is very important for the questions of 1 mark. Okay, listen. Here I have today's topic, that is empirical relationship between mean, median and mode. The empirical relationship or the formula of mode, mean and median is mode equals 3 median minus 2 mean. Okay? Mode equals 3 median minus 2 mean. Okay? If any two of these three are given, then we can find out the third value. Let me take an example. If mode and mean of a data are 8 each, then find median. Listen, here we are given mode and mean, both are each 8, and we have to find out the median. How can we find the median? Just substitute the values of mode and mean in this empirical relationship. Okay, the empirical relationship that is given by mode equals 3 median minus 2 mean. Just put these values. The mode is 8, put here 8, 3 median as it is, because I have to find out the value of median, minus 2, mean is also 8, 8 equals 3, this is a linear relationship, minus 16, bring this to this side, 8 plus 16, that can be equal to 3 median. That's why it becomes 24 equals 3 median. What we have to do? Divide whole by 3 or bring this 3 to this side. It will make it divide and the result will be same 8. So median becomes 8. Okay. This is the very first type of question I have explained on the basis of mean, median and mode relationship. Clear? Let's move to the next question. And थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालेंगे, थोड़ा सा कुछ मुश्किल सा भी लाएंगे. मुश्किल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस अपना अपना एक नजरिया है. थोड़ा सा एक क्वेश्चन हार्ड सा क्वेश्चन लेते हैं जो हमें जरूरी है. पहले सिंपल, फिर एक हार्ड, और लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Here is another question. Let's go through the statement first. The arithmetic mean is also mean, and mode of data are 24 and 12 respectively. What does respectively says? That the first value mean will be 24 and mode will be 12. जब मैं 7th 8th में पढ़ता था तब पहली बार मैंने रिस्पेक्टिवली वर्ड पढ़ा था, तो मुझे उसका मतलब नहीं पता था. उस समय तो यूं ही चलता रहता था कि चलो भाई, आइडिया लग जाता था कि मीन का मतलब ये है, मोड का मतलब ये है, पर रिस्पेक्टिवली का मतलब नहीं पता था. हिंदी में बोलते हैं क्रमशः, क्रम अनुसार. ठीक है, यानी कि पहले वाले की पहली वैल्यू, सेकंड वाले की सेकंड वैल्यू. चलो कोई बात नहीं. तो फिर हमें इसका निकालना है मीन. ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन. मीडियन निकालना, सॉरी, इसमें मीडियन वी हैव टू फाइंड. मीन हमें दिया हुआ है 24 और
मोड हमें दिया हुआ है 12। अब हमें निकालना है मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमें इसकी एम्पिरिकल रिलेशनशिप पता है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दोट्स वी हैव 12 इज द मोड, मोड की जगह पे 12, 3। Now we have to find out median, so needn't to change it. We have to write as it is, and 2 into mean. What is the value of mean is? Here it is 24. Let us calculate it. 12 equals 3 median minus it becomes 48. Bring this 48 towards this. 12 plus 48 equals 3 median. What does it become? It becomes 60. Bring this 3 to this side and median will be 20. I hope you are well aware now. You can do this question yourself. Okay, let me take one more example. After that, I'll give you one question to do and we'll wait for your reply. Now, let me take one more question. Okay, please note it down. So, here is another question. If difference of mode and median of a data is 24, then find the difference of median and mean. मतलब वैसे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, तो पर हम इसे अपने माइंड से भी कर सकते हैं इजीली। देखो, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, डिफरेंस क्या हो सकता है? मोड माइनस मीडियन हो सकता है और मीडियन माइनस मोड हो सकता है। ठीक है, अब आप बात समझिए कि इन दोनों में से हमने लेना कौन सा है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, हमेशा किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन पर। और हमें दूसरी चीज फाइंड क्या करनी है? मीडियन और मीन का डिफरेंस, यानी कि टू फाइंड हमारे लिए क्या है? मीडियन माइनस मीन। तो ये डिफरेंस लेंगे। यहां मीन माइनस मीडियन क्यों नहीं करते, वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या रिलेशन है? मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो, हमें यहां मोड है, या तो हम दोनों तरफ क्या करें? मीडियन से माइनस कर दें, है ना, क्योंकि हमारे पास तो मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है या मीडियन माइनस मोड दिया हुआ, तो मोड माइनस मीडियन है, डिफरेंस हमें देखा 24, या ये। अगर मैं इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, और करेंगे भी इसी सिचुएशन को, यहां पर है मोड और यहां 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या तो मैं एक काम करूं कि दोनों तरफ मीडियन से माइनस कर दूं। थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम मीडियन से माइनस करते तो इस तरफ क्या आ जाएगा? मोड माइनस मीडियन। उस तरफ क्या होगा? 3 मीडियन, एक मीडियन और माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? 2 मीडियन रह जाएगा। और ऐसा करने के बाद क्या होगा? यहां रह जाएगा 2 मीडियन और यहां रह जाएगा 2 मीन। 2 कॉमन लेने के बाद हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी हमें। चलो देखो, तो सब्ट्रैक्ट मीडियन बोथ साइड्स। तो यहां पर हम लिखेंगे मोड माइनस मीडियन, लेफ्ट हैंड साइड पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड पर भी करेंगे। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये ऑलरेडी पढ़ा था, तो मीडियन हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मोड माइनस मीडियन जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। 3 मीडियन माइनस मीडियन हो गया हमारे पास 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 24। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। चलो जी, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मीडियन माइनस मीन, दैट इज 12। फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। दैट्स इट। है ना इजी और मजेदार भी। चलिए नोट कर लीजिए।
चलो, वैसे तो मैंने कहा था कि उस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन बस आपको प्रॉब्लम में देंगे, लेकिन मेरे मन में आया कि एक और ऐसा क्वेश्चन जैसा भी हमने किया वैसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12। पहले इस बात को समझिए कि मोड जो है वो मीन से 12 एक्स्ट्रा है, देन मोड जो मोड है वो एक्सीड करता है मीडियन को कितना ज्यादा। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ आया। देखो हमने क्या निकालना है, हमें देखा है मोड जो है वो मीन से 12 जाता है, ये हमें गिवन है। तो इसमें चूज द एप्रोप्रिएट आंसर है, इनमें से आंसर जो आएगा देखेंगे, नहीं आएगा तो लिख देंगे जो हमारा आंसर आएगा वही लिखेंगे, नन ऑफ दीज, एंड रियल आंसर जो होगा वो लिख देंगे हम। अब हमें निकालना है मोड एक्सीड्स द मीडियन। जो रिलेशन निकालनी है हमने वो किसकी निकालनी है, मोड और मीडियन की। ठीक है, तो एलिमिनेट क्या होगा, मीन होगा, तो आप यहां से पहले मीन की वैल्यू निकाल लो। मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड माइनस 12। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आपने लिखा सामने। अब आप देखिए हमारी जो रिलेशन है वो क्या है, मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए क्या दी हुई है, द मोड एक्सीड्स। ठीक है, यहां पर देखो वैल्यू तो हमें मोड की भी दे रखी है, यहां पे मोड को मैं चेंज क्यों नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है। मोड को मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें स्टेटमेंट को समझना है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। अब करने को तो हम इसको यूज करके भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन मैं मीन की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, इस बात को समझो। आपने भी अपने माइंड को ऐसे अप्लाई करना है कि मीन क्यों निकाला आखिर सर ने, मोड देखा तो मोड पुट करके कर लेते, हो जाता, थोड़ा लेंथी पड़ता, लेकिन मीन क्यों निकालना है ये सोचने के लिए आपको इसका जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का समझना है। देन मोड एक्सीड्स द मीडियन, इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा वो मोड और मीडियन की रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, मोड और मीडियन के रिलेशन में आएगा। तो यहां से आप जो मीन की वैल्यू है वो यहां पुट कर दीजिए, सारा क्वेश्चन मोड और मीडियन में हो जाएगा। मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2, मीन की वैल्यू क्या है, मोड माइनस 12। क्लियर, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। मोड इक्वल्स 3 मीडियन, ब्रैकेट के बाद माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -2 मोड प्लस 24, उठाकर इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा मोड, ठीक है, प्लस 2 मोड इक्वल्स 3 मीडियन प्लस 24, मोड प्लस 2 मोड, दैट बिकम्स 3 ऑफ मोड इक्वल्स, यहां 3 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा मीडियन प्लस 8, 3 से 3 कैंसल, मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीडियन प्लस 8। अब आप बताओ कि मोड मीडियन से कितना ज्यादा है, 8 मोड है। हमारे पास ऑप्शन में आंसर है, बिल्कुल है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। ये है हमारा आज का टॉपिक, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड द मोड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आंसर तो कुछ बच्चे तो करते ही हैं, सभी नहीं करते तो क्या हो गया। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, पीछे एक वीडियो पर कोई भूमि मेहता है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने मोर देन टाइप को जो है वो उसमें क्यों बदला क्लास इंटरवल में। तो वैसे मैंने उसका आंसर उसमें कमेंट सेक्शन में दे दिया, फिर भी मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो भूमि मेहता जी जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने ऐसा रिस्पॉन्स उस पर दिया कि अगर हमें सिर्फ ऑजिव ड्रॉ करनी है तो हमें डाटा को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपने
जो ऑजिव से मीडियन तो निकालिए, पर उसे वेरीफाई कीजिए फॉर्मूले से निकालने के बाद। तो आप डाटा को क्लास इंटरवल में पहले बदलेंगे और उसके बाद उसका फॉर्मूले से मीडियन भी निकालेंगे। ठीक है। और एक चीज और है, जब भी आपके सामने सिर्फ क्वेश्चंस हो, आंसर्स ना हो, तो भी ये टेक्निक अप्लाई करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम एक आपको क्वेश्चन देंगे एंड एज यूजुअल आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल्स हु सीज द वीडियो, दे मस्ट आंसर। चाहे पहले किसी ने कर रखा हो, मेरा मनोबल बढ़ता है इससे। ठीक है। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन। The question or questions for you here are in your mobile or laptop or wheresoever you are searching। आजकल तो स्मार्ट टीवी में भी आ रहे हैं, तो जैसे भी आप इसके आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको इसी डाटा पर। इफ मोड ऑफ अ डाटा इज 10 एंड मीडियन इज 8, देन फाइंड मीन। इजी है। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। कंप्लीट द रिलेशन, नीचे जो रिलेशन दिया हुई वो आपको कंप्लीट करनी है। मीन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं है, ये होगा मीन इक्वल्स मोड प्लस व्हाट। यहां क्या आएगा? सो हैव अ वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग ऑन, लेट्स मेक मैथमेटिक्स in very interesting and easiest way.